Yes. So now indifference curve for commodity Y, oranges, and commodity X, mangoes. There are two commodities, commodity Y, oranges, and commodity X, mangoes. Everyone please write it down and make it in your copy. Please everyone. Because we are going to go through this, we are going to make an indifference curve, as it is very important in economics that we know how to make curves and all the graphs and all. Okay. So accordingly, how much is the commodity of X and how much is the commodity of Y from this table? We are going to see that. Okay. So let us make it for commodity Y 3, 4, 6, 3, 4, 6, 9, and 14. All right. 3, 4, 6, 9, and 14. Or it should go backwards. 14, 9, 6, 4, 3. All right, everyone? Write it down, because the more we sacrifice from Y, the more we are going to gain from commodity X, as I said you yesterday. All right? And for X, we are going to have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Write this table down. After that, we are going to move on with the indifference curve. Yes, everyone. Okay. Whatever problem you are going to have, do let me know in between. Okay. I believe you can unmute yourself whenever you are having any problem. Okay. So now, I believe all of you have written down commodity Y oranges 14, 9, 6, 4, 3 and commodity X mangoes 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now, what you need to do is, we are going to remember this. Okay, 14, 9, 14, 9, 6, 4, 3, and 1, 2, 3, 4, 5. This is for oranges, this is for mangoes. Now we are going to make a graph over here. Okay? Yes, this is the graph. And indifference curve analysis is a little different from the last chapter where we are doing the curve, where we were doing the curve. Indifference curve is basically convex to the origin, and in the last chapter when we were making the curve, they were concave to the origin. Okay, so let us make the points over here: 3, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. These are the points, and over here 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, everyone. So how we are going to make the indifference curve analysis over here? Now, when we are just having one amount of mango, that is 1 unit of mango, we are having 14 units of oranges for the maximum level of satisfaction. So here it is 14. After that 2, we are going to go towards 9. Here it is. Okay, then 3, we are going to go towards 6. Here. Then 4, we are going to go with 4 only. Over here 4 and that 4 also. Both are same. We are having 5 and we are having 3. So see, the curve will be like this. Indifference curve is convex to the origin. This is 1. And the 10th point is not very clear over here. Over here it will be. We were having 9, basically. Here it is. Then 6. Then 4. And then 3. Okay, everyone, this is the curve which we are going to make, indifference curve. Now, I have discussed yesterday that Y indifference curve is downward sloping.
Because what we have said yesterday, that indifference curve is downward sloping because of one small thing, that is whenever we are going to sacrifice one commodity which are substitutes of each other, then only we are going to increase the amount of the other commodity. Am I right? And as we all know that marginal rate of substitution is what? MRT, जो हमने last time किया था. Alright, वो हमें क्या कहता है? That it is very important that slowly but gradually when you move from one to the other, आप उतने के उतने sacrifice नहीं रह, आप उतने के उतने satisfy नहीं रह सकते. जैसे if suppose you are eating, say suppose you are eating oranges, आप जब 14 oranges खाते हो तो आपको 1 मैंगो चाहिए होता है. Then you increase the amount. यहाँ पर देखो आपने क्या किया, आपका जो बेसिकली रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो देखो कितना ज्यादा है. यू आर लूजिंग अराउंड 14 से 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज एंड यू आर गेटिंग ओनली 1 यूनिट ऑफ मैंगो. आपको सिर्फ 1 यूनिट ऑफ मैंगो का गेन है. ठीक है, ओनली 1 यूनिट ऑफ मैंगो यू आर गेनिंग एंड लूजिंग 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस. देन व्हाट हैपेंस, then you are losing from 9 to 6, 3 units of oranges and again you are gaining 1 unit. Then you are losing 2 units, you are gaining 1 unit. Then you are losing 1 unit and you are gaining 1 unit. ऐसा क्यों होता है? Why does it happen? Is there anyone who would love to answer this? कोई है जो मेरे को आंसर करेगा that why does it happen that slowly but gradually we are not losing as much as we were losing at the start? Anyone who would love to give the answer, please raise your hand. तो ये सेटिस्फैक्शन की जो बात थी, अंजलि ने बिल्कुल राइट आंसर दिया कि सेटिस्फैक्शन लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये ऑरेंजेस से हम पक जाएंगे. हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम पक जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे. तो स्लोली बट ग्रेजुअली देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी मैंगो. ऑलराइट, ये कमोडिटी एक्स मैंगोज है. व्हेन यू आर मेकिंग द ग्राफ यू शुड बी वेरी क्लियर. दिस इज कमोडिटी X mangoes and this is commodity Y oranges. ठीक है, we need to be very clear कि आप जितना ज्यादा अमाउंट में खाते हो या जितना ज्यादा अमाउंट में कोई भी चीज यूज करते हो, अगर आपके सब्स्टिट्यूशन में कुछ है तो आप धीरे धीरे उससे बोर होने लगते हो और दूसरे चीज की तरफ जाते हो. Why? Because we human beings are made like that. हमारी एक ही जो बोरियत वर्ड है हम सब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो इसीलिए यूज करते हैं. Because we somewhere want our satisfaction and that satisfaction comes by moving from here to there. And it is always very important to know that ये जो है indifference curve analysis का जो important जो 5 points मैंने आपको कल लिखाए थे, क्या 5 इनके basically assumptions जो लिखाए थे वो आपको याद रखना. Because without the assumption आपको ये बात क्लियर नहीं होगी कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. 5 assumptions क्या क्या थे? I am repeating it once again. Everyone, please see to it. Money income of the consumer is given and does not change. Money income जो है कंज्यूमर का वो given रहेगा और कभी चेंज नहीं होगा. The two goods are substitutes of each other, which I have said. Indifference curve analysis are done according to 2 goods which are substitute of each other. मतलब tea, coffee, rice and what do I say? Say for instance, rice and wheat. Okay, so like that, oranges and mangoes. So we need to have substitutes of each other. Next, the consumer's scale of preference for the 2 goods does not change. स्केल ऑफ प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का वो चीज. अब देखो यहाँ पर ना एक चीज और क्लियर करनी है. आप ये पढ़ा रहे थे मैं उसके अचानक मेरे को याद है कि मैं बता रहा हूँ, ये कहीं पे भी कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन नीचे नहीं गया है. कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कहीं पे भी नीचे नहीं गया और हर पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इज स्टिल स्टैग्नेंट. वो अपने सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए ही एक से दूसरे पे शिफ्ट कर रहा है. और ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि कंज्यूमर इज रैशनल, कि उसको अपने फुल सेटिस्फैक्शन पे पहुंचना है. जितना इनकम वो कमा रहा है उस इनकम में जो वो खरीद सकता है, वो जो खरीद सकता है उससे उसको अपने फुल सेटिस्फैक्शन में पहुंचना है. ये हमें मान के चलना पड़ेगा. दैट इज ऑल्सो एन assumption. तो उसको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी वो ऑरेंजेस ज्यादा खरीदेगा, कभी वो मैंगो ज्यादा खरीदेगा, अकॉर्डिंग टू दी प्राइस, अकॉर्डिंग टू दी चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू दी his taste buds. So there are so many things which comes important over there. But economics में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? 5 assumptions जो हमने बताए. The consumer is driven by monetary preferences and the consumer is rational, that he always wants highest level of satisfaction from his given income. ठीक है.
तो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है। अब मैं आपको एक ड्राइंग भी दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, जिसमें आपको वेरी क्लियर हो जाएगा। मेरे फटाफट जब भी मैं ड्राइंग करता हूँ, इट्स नॉट दैट ब्यूटिफुल, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू द ड्राइंग व्हिच इज एक्चुअली द सेम थिंग इज एलैबोरेटेड देयर। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। देखिए यहाँ पर ये, आई बिलीव दिस स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ऐसे इंडिफरेंस कर्व है, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, दिस इज इंडिफरेंस कर्व, दिस इज A point 14, दिस इज B point 9, दिस इज C point 6, D point 4 of oranges and E point 3 of oranges and 5 of mangoes। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी कर्व में आप जाओगे इस इंडिफरेंस कर्व के अंदर, जो भी कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, ये याद रखना कि सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर का, वो कहीं भी गिरा नहीं है। वो ऑरेंजेस को लेके कम हुआ है, मैंगोज को लेके बढ़ गया, लेकिन वो अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन में है इन द गिवन इनकम। ये हमें याद रखना। ऑलराइट एवरीवन, प्लीज मेक दिस what do I say, make this graph in your copy clearly so that we can move on now from here। आपने जब ग्राफ बना ले तो प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। ओके, once you make the graph, please raise your hand। So now, IC always slopes downward. Why? One reason which is there is, you can write down in your copy, since consumption of two goods is inversely related, IC must have negative slope. This is called negative slope. Since everyone please write it down that why IC is always having a negative slope. Since consumption of two goods, since consumption of two goods is inversely related, so IC must always have a negative slope। तो IC का हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा। क्यों? क्योंकि दो गुड्स जो है वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। गॉट इट एवरीवन? तो राइट इट डाउन वेयर यू हैव मेड द ग्राफ। ये भी लिख के कंप्लीट कर लो आप। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। लेट मी सी दैट इफ देयर इज एनीवन हु कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव, आई रिमूव इट बिकॉज आई कैन do that easily from here। Lower all hands। The question is that state the principal reason that leads to downward slope of IC। State the principal reason that leads to downward slope of IC। Is there anyone who can give the answer? You can unmute and give the answer fast, but fast। एक principal reason बताओ जिसकी वजह से IC downward sloping होता है। Sir? Yes, Anjali, let's go for it। Sir, I'm not sure, but law of diminishing marginal utility। ओके, चलो वेरी गुड, ये मान लेते हैं। और कोई जो कुछ और आंसर देना चाहेगा? वाहिनी अग्रवाल, गो फॉर इट। Sir, it's a try. I think it's monotonic preference। What do you mean by monotonic preference? Sir, it is where कि जहाँ पे एक जो गुड होता है वो हायर सेटिस्फैक्शन पे हमें लेके जाता है। तो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो एक हमने लिया है, चाहे वो मैंगो हो चाहे वो ऑरेंज हो, वो एक गुड है और उससे हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और एक से हम लोग उस बैलेंस कर रहे हैं। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी होता है कि अगर एक जो गुड है वो हमेशा हायर सेटिस्फैक्शन की तरफ जाता है। तो Very good, well done, because everyone has we are human beings and we are having different kind of choices, right? जैसे मुझे मैंगोज बहुत पसंद है तो मुझे हमेशा मैंगोज हायर सेटिस्फैक्शन देगा rather than oranges। That's how you people would have your own
flavor, you people will have your own taste, but like that you people have your own choices in your life. ठीक है ना? तो वो choices के according आपका जो preferences है वो काम करता है. That is called monotonic preferences. जैसे out of tea or coffee, I'll always choose tea. Alright, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, या चलो 10 कप चाय पी लिया तो अब 2 कप मैं कॉफी पी लेता हूँ और ये मेरा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन लेवल पे जाएगा. 10+2 का रेशियो होगा, कभी भी 10 कॉफी एंड 2 टी नहीं हो सकता. एंड दिस इज व्हाट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस. तो ये क्वेश्चन भी लिख लो और इसका आंसर भी लिख लो एवरीवन. स्टेट द प्रिंसिपल रीजन दैट लीड्स टू द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ आईसी. स्टेट द प्रिंसिपल रीजन दैट लीड्स टू द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ आईसी. द क्वेश्चन इज state the principal reason that leads to the downward slope of IC. ये क्वेश्चन है. Write it down everyone, and then in economics terms how you are going to write the answer. I am going to dictate it right now. हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे वो टॉपिक क्लियर हो जाता है पूरा, वो क्वेश्चन हम बीच बीच में करते जाएंगे. ठीक है एवरीवन, तो इसे लिख लें. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ इट. तो आप फटाफट इसको लिख लें. इट इज आंसर है इसका. इट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर. It is monotonic preference of the consumer that leads to downward slope of IC. It is monotonic preference of the consumer that leads to downward slope of IC. Full stop. According to monotonic preference, according to monotonic preference, more of a good always leads to higher satisfaction. More of a good always leads to higher satisfaction. जितना ज्यादा आप गुड खाओगे, लोगे, खरीदोगे, उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलता जाएगा. लेकिन वही है ना, ये हमारे पास इनकम कितनी होती है उसे मैनेज करना पड़ता है बाद में जाके. लेकिन ये जो है क्या बोलते हैं, इसका बेसिक प्रॉपर्टी जो है इन डिफरेंस कर का वो यही है कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस पे रहता है कि आप जितना ज्यादा गुड लोगे उतना ज्यादा आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा. ठीक है. अकॉर्डिंगली, फुल स्टॉप के बाद लिखना अकॉर्डिंगली मोर ऑफ वन गुड, accordingly more of one good must be combined with less of the other, full stop. So that from us satisfaction level remains constant, at all points of IC, so that satisfaction level remains constant at all levels of IC in different stuff. I believe everyone has written. Please raise your hand. If everyone has written, please raise your hand. Yeah. Thank you so much. Now there is one more thing. What does it mean when we say that IC is convex to the origin? बहुत simple है. It means that the slope of IC tends to decline as we move along the IC from left to right. And this slope, ये जो slope होता है, आप suppose करो ये है और ये आपका slope हो रहा है. तो ये जो slope है, इसे हम कहते हैं marginal rate of substitution. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इस स्लोप को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS. इट इज एट विच रेट द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर द अदर. MRS
कहते हैं इसे MRS इन शॉर्ट फॉर्म, और इसका डेफिनेशन क्या है? MRS refers to the rate at which the consumer MRS refers to the rate MRS refers to the rate at which the consumer is willing to substitute one good for the other. ठीक है, वो विलिंगली जब सब्स्टिट्यूट करता है एक गुड से दूसरे गुड के ऊपर, और वो जिस रेट पे सब्स्टिट्यूट करता है इसे हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एंड विच इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमें ये सब पता चल गया कि ये जो IC है, IC कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन है, और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है इसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर आर टू सब्स्टिट्यूशनल गुड्स जिसके बारे में हम हमेशा बात कर रहे होंगे, लाइक मैंगोज एंड ऑरेंजेस, लाइक टी एंड कॉफी, लाइक राइस एंड व्हीट, हम उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक आई बिलीव एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू एवरीवन सिटिंग ओवर हियर इन माय क्लास। I believe everything is very clear to everyone sitting in my class. Is there any question related to whatever we have learned up till now in this chapter? अगर आपको अभी तक में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। We are going to make a graph of IC is convex to the origin implying diminishing MRS. IC is convex to the origin implying decreasing MRS और increasing MRS, implying decreasing और diminishing, आप कुछ भी लिख सकते हो MRS। ठीक है, IC का फुल फॉर्म हो गया इंडिफरेंस कर्व। ओके एवरीवन, बस हम आज यही बनाएंगे और इसके बाद अगर कोई एक्सप्लेनेशन बाकी रह जाएगा तो वो हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है एवरीवन, इसका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो भी मैं लिखा देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू डेल्टा Y बाई डेल्टा X। एवरीवन राइट इट डाउन, स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू डेल्टा Y बाय डेल्टा X। ऑलराइट, अगर आपका ये ग्राफ है, हाँ सर डेल्टा क्या होता है? डेल्टा चेंज इन Y बाय चेंज इन X। ओके, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, AB बाय BC, अगर ये ग्राफ है, हम ये बाद में करेंगे, पहले आप ये समझिए, ये आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है और आपका एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये जस्ट इमेजिनेशन पर है। ठीक है, सपोज करना ये Y है और ये X है, और यहाँ पर आपके 10 है और ये सपोज करो आपके 7 है। ठीक है, और ये आपके 2 है और ये 4 है। तो ये जो चेंज आपका आ रहा है ये डेल्टा, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो? ABC, तो आप क्या कर लोगे? AB बाय BC इज इक्वल टू जो भी आपका निकलेगा, AB बाय BC क्या निकलेगा? 3 बाई, ये कितना है? 2, ये है 3 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 में क्या आ जाएगा? इसको आप रेशियो जो भी निकलता है वो निकालो, जो रेशियो आएगा वो यहाँ पर आप पुट कर दोगे। गॉट इट एवरीवन? जो भी रेशियो आएगा वो आप यहाँ पर पुट कर दोगे। और माइनस में क्यों? क्योंकि आपका जितना भी MRS है वो नेगेटिव होता है, ये हमने पहले ही पता कर लिया था, तो ये हमेशा रिजल्ट जो है इसका वो नेगेटिव ही में ही माना जाएगा। आपका कुछ भी आ रहा हो वो नेगेटिव में इसका रिजल्ट माना जाएगा। और एक बात जो मैं आपको बता देता हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो IC है, इंडिफरेंस कर्व है, वो कभी भी इस पॉइंट को या इस पॉइंट को टच नहीं करेगा। इट विल नेवर टच दिस 2 पॉइंट, इट विल नेवर टच द Y एक्सिस, इट विल नेवर टच द X एक्सिस, इट विल ऑलवेज रन हियर। क्योंकि आप जीरो लेवल की तो सब्स्टिट्यूट पे बात कर ही नहीं सकते। यू कैनॉट टॉक अबाउट एट जीरो लेवल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द
सब्स्टिट्यूट, दैट्स व्हाई इट विल नॉट टच द 2 पॉइंट, जो कि बहुत अंडरस्टैंडेबल है। आप अगर जीरो लेवल की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूट हुए ही नहीं ना, सब्स्टिट्यूट की बात जब हम कर रहे हैं तो जीरो लेवल की बात ही नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ना ये वाई एक्सिस को टच करता है ना ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ये हमेशा इसके बीच में रन करता है। ये अगर ये पहला है हायर सेटिस्फैक्शन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये हायर सेटिस्फैक्शन के रूप में ऐसे आगे बढ़ता जाता है। IC0, IC1, IC2, IC3, IC4, ये आप चाहे जितना बढ़ा सकते हो, एंड ये ऑलवेज माइनस में आता है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप इसलिए इसे कहा जाता है, हमारा सीधा नेगेटिव स्लोप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? आई बिलीव एवरीवन इज वेरी क्लियर अप टिल ओवर हियर। ठीक है, अब एक कितना मिनट बाकी है? ऐसे 4 मिनट बाकी है, तो अब मैं ये अभी आपको नहीं करवा पाऊंगा। तो इसके आगे जो IC कन्वेक्स टू द ओरिजिन इंप्लाइंग डिक्रीजिंग MRS जो है वो हम लोग कल प्रॉपर्ली एक टेबल बना के ग्राफ बना के करेंगे, और इसके जो प्रॉपर्टीज है IC के वो समझ लेंगे, ताकि हम लोग धीरे धीरे करके बजट लाइन की तरफ भी बढ़ सके। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क। ये आज यहाँ पर हम लोग इसको रोकते हैं, जो भी हमने आज क्लास में किया है।